Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Thank you. Thank you so much. Dandavat pranams to each and every Vaishnav. Specific thanks to Brajapriya Mataji. मैंने कीर्तन या सदाहरी बुक जो कदम्ब कानन स्वामी महाराज का लिखा हुआ बुक है उसमें पढ़ा था। महाराज लिख रहे हैं द फायर ऑफ ये कोई अग्नि को कॉन्स्टेंटली जलाए रखने के लिए उसमें कांस्टेंट ईंधन डालना होता है, फ्यूल डालना होता है। तो महाराज कहते हैं जो भक्ति की अग्नि है, फायर ऑफ डिवोशन, उसको कॉन्स्टेंटली जारी रखने के लिए कौन सा हमें फ्यूल डालना होता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। सो बिकॉज ऑफ दैट आपकी कृपा से माता जी आई एम एबल टू डू सम रीडिंग, some sharing of whatever I have heard. So all glories to you, Mataji. I bow down to you in reverence. So I begin with the prayers. Om Adhyanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Seeking blessings of all the Varishta, senior Bhaktas, exalted devotees, you all Vaishnavas. I begin with the verse given to me by Mataji. It is from Canto 2, Chapter 9, verse number 30. Yavat sakha sakyur iveshate kritah Praja visarge vibhajami bhojanam Aviklavaste parikarmani stito Mame sammunadhamado ajamaninaha. The translation goes as Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. O my Lord, the unborn, you have shaken hands with me just as a friend does with a friend, as of equal in position. I shall be engaged in creation of different types of living entities, and I shall be occupied in your service. I shall have no perturbation, but I pray that all this may not give rise to pride, as if I were the supreme. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. इस श्लोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और जब हम क्लास में सीख रहे थे तो उस समय हमारे टीचर हमसे ये कह रहे थे कि यदि हमें कोई भी मटेरियल कार्य करना हो, स्पिरिचुअल कार्य करना हो, इस श्लोक के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। तो इस श्लोक में मुख्यतः दो विषयों पे मैं चर्चा करके प्रयास करना चाहूंगी टू स्पीक ऑन दोस टू टॉपिक्स, विच इज द मूड ऑफ सर्विस एंड प्राइड। तो अब यहाँ इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि भगवान ने
श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य सौंपा है और वो बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। ब्रह्मा जी की ये पोस्ट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। ब्रह्मा जी इज द आत्म योनि, the first living entity who has no parents, and he is most intelligent. He is the husband of goddess of learning. तो कितना इंटेलिजेंस है उनके अंदर, और वो आचार्य भी हैं हमारे लिए, बिकॉज ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं, सो वी लुक अपॉन हिम ऑल्सो एज एन आचार्य। तो उस ब्रह्मा जी को यदि भगवान ने ये कार्य सौंपा सृष्टि रचने का, दिस इज विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। तो बेसिक टेक्निकल ज्यादा इसमें न जाते हुए जस्ट एक आइडिया देने के लिए, महाविष्णु के छिद्रों से, पोर्स से अनंत अनंत बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस इमैनेट, बहुत सारे यूनिवर्सेस का निर्माण हो रहा है, और भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को ये सारे यूनिवर्सेस दिए गए हैं। भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को सारे इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स दिए गए हैं। महतत्व इज आल्सो गिवन टू हिम। अब ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? विद इन दोस यूनिवर्स के अंदर के डिटेल्स को मैनेज करना। और वो ब्रह्मा जी को होता क्या है, जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो एनिहिलेशन होती है। एनिहिलेशन यानी सारे जो जीवात्माएं हैं वो डॉर्मेंट स्टेट में भगवान के अंग में विलीन हो जाते हैं। तो जब मॉर्निंग होती है ब्रह्मा जी की, तो उन सारे जीवात्माओं को मानो ब्रह्मा उस स्टेट ऑफ स्लम्बर से जगाते हैं, और उन्हें सारे मोल्ड्स भी, 84 लाख योनियों के जो मोल्ड्स हैं, जो ढांचे हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, हर भिन्न भिन्न जो शरीर हम देख रहे हैं वो भी रेडी हैं, उनके पास दिए जाते हैं। ऑल ही हैज टू डू इज हर एक जीवात्मा को उस मोल्ड में फिट करना होता है एज पर देयर कर्मा, पास्ट कर्मास एंड देयर डिजायर्स, और वो एक्टिव हो जाते हैं। एंड दिस इज हाउ द क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन हैपेंस एंड इट्स द प्रोसेस बिगिंस। तो अब एग्जाम्पल इस प्रकार देवामृत स्वामी समझाते हैं, मानो एक अम्यूजमेंट पार्क हो और छोटे से बच्चे बहुत खुश हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की राइड्स पे वे एंजॉय कर रहे हैं, पर जैसे ही अंधेरा होता है, रात होती है, वो बच्चे अपने घर जाके सो जाते हैं। सुबह जब पार्क खुलती है, अम्यूजमेंट पार्क, वापस सारे राइड्स वगैरह चलने लगते हैं और बच्चे वापस उठकर उनमें अपने खेल में वापस बिजी हो जाते हैं। So this is what is happening with the creation also. I think भगवत गीता के 8th चैप्टर में 9th और 10th वर्स में भी यही दिया गया है कि बार बार प्रलय हो रही है और बार बार ये क्रिएशंस हो रही है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं, जैसे सुबह हम ऑफिस आते हैं, रात को जैसे हम ऑफिस का कार्य खत्म कैसे होता है, हम ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तो जैसा कार्य खत्म होता है हम अपने लैपटॉप्स ऑफ करते हैं, अपने फाइल्स बंद करते हैं, ड्रॉवर्स खोलते हैं, उन फाइल्स को अंदर रख के ड्रॉवर्स लॉक करके ऑफिस से बाहर निकलते समय बत्तियां वगैरह, फैन वगैरह बंद करके ऑफिस से घर जाके सो जाते हैं, रेस्ट लेते हैं। मॉर्निंग एज वी कम बैक अगेन इनटू द सेम थिंग्स, वापस लैपटॉप चालू होता है, लाइट्स, फैंस, ड्रॉवर्स खोल के फाइल्स ओपन होती है, वी गेट बैक टू आवर वर्क, एक्शन शुरू हो जाता है। So this is how in simple terms, analogies से ये समझा जाता है कि ब्रह्मा जी का कार्य ये है। और ब्रह्मा जी अपने कार्य को, जब ये सेवा उन्हें दी जाती है तो वो तत्पर है अपने कार्य को, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य दिया गया है करने को, और वो कैसे एटीट्यूड से करते हैं ये कार्य। वो मानते हैं, इस श्लोक में दिया गया है कि मैं सुप्रीम नहीं हूं, आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंटल, ये कार्य करने में मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, प्रभु आप ही कर रहे हो, आप ही की शक्तियां हैं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। सो ही इज कॉन्शियस ऑफ दैट। इसलिए उन्हें प्योर डिवोटी का भी ये कैटेगरी में डाला गया है कि वो भक्त जो प्योर डिवोटी होता है वो समझता है कि भगवान का ही हाथ है हर चीज में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक निमित्त हूं मात्र। और तो ये मूड ऑफ सर्विस हम समझ सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैंने बहुत साल पहले बैक टू गॉडहेड मैगजीन में पढ़ा था, अबाउट वन वंडरफुल डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज। वो उनकी डिसाइपल रागलेखा माता जी,
वो रशिया में थी। येकाटेरिनबर्ग नाम का एक सिटी है। रशिया का वेदर भी कैसा है हमें पता है, -20 डिग्री तक जाता है। अब ये माता जी को पता लगा कि महाराज, उनके गुरु महाराज आए हुए हैं रशिया में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, महाराज आप मेरे घर पधारें, मेरे पास शिला है, आप प्लीज आकर दर्शन भी करें और मुझे भी कृतार्थ करें अपने दर्शनों से। महाराज ने सोचा मेरे पास समय तो बहुत कम है, पर चलो अब मेरी भक्त बुला रही हैं तो फटाफट इन हरी आई विल जस्ट विजिट। एंड अपने एक शिष्य को लेकर, जन निवास नाम था उनका, उनको लेकर महाराज उनके वहां पधारे। जैसे ही घर में गए तो घर की हालत देखकर महाराज को ऐसे लगा, स्मरण हुआ जैसे एक वृंदावन का छोटा सा सिंपल सा घर हो, सिंपल लिविंग जिसको कहते हैं। मात्र एक कुर्सी, एक टेबल और एक ऑल्टर सा, छोटा सा ऑल्टर था जिसमें गोवर्धन शिला विराजमान थी। उस शिला का नाम लाला था और लाला के इर्द गिर्द सुंदर फूल थे, स्वीट्स रखे हुए थे उनके भोगा के लिए। महाराज जैसे ही पधारे तो महाराज ने अपने शिष्य के तरफ देखकर कहा, और माता जी करीब 40 साल की उम्र की थी, रागलेखा माता जी, और डू यू स्टे हियर? माता जी का जवाब था, नहीं, मैं तो मात्र एक गेस्ट हूँ, मैं तो एक मेहमान हूँ, ये लाला का घर है। महाराज बहुत इम्प्रेस हुए और बहुत खुश हुए। उसके बाद महाराज ने कहा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं? तो माता जी ने विनम्र होकर कहा, आपने महाराज, गुरु महाराज मुझे 13 साल पहले ये आदेश और एक कार्य दिया था कि मैं आप श्रीला प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, मैं वही कार्य करती हूँ। तो जो भक्त आए थे महाराज के डिसाइपल, यानी इस माता जी के गॉड ब्रदर जन निवास प्रभु, उन्होंने कहा विस्तार से महाराज को, महाराज आज इन 13 सालों में इस माता जी ने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया, एक्सेप्ट व्हेन शी इज इल, जब वो बीमार रहती हैं। बट हफ्ते के 6 दिन और पूरे दिन में 8 घंटे, -20 डिग्री टेम्परेचर हो या गर्मी हो या बरसात हो, माता जी निरंतर जाकर श्रीला प्रभुपाद के बुक्स का वितरण करती हैं। तो महाराज एकदम मतलब हैरान भी हो गए और उनके आंखों से अश्रु भी आने लगे कि इसने मेरे आदेश को कैसे लाइफ एंड सोल बनाया है। बेसिकली हम यही गाते हैं कि जब गुरु या कृष्ण से सेवा प्राप्त होती है तो गुरु ही एम्पावर करता है, पर उसकी स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम उस सेवा को करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गुरु। तो ये माता जी ने फिर उठकर वो लाला के वहां से ऑल्टर से लक्ष्मी निकालकर महाराज के हाथों में देनी चाहिए। तो महाराज ने देखा और उस भक्त ने कहा, ये बहुत सिंपल रहती है, सिर्फ 1 या 2 साड़ियां हैं, और कभी कभी जब ये स्ट्रीट्स पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाती हैं, और ये रशिया है, वहां जो रास्ते पे गार्ड्स या मोटे से ऐसे लोग हैं, वो उठा उठा के माता जी को पहले पटकते थे, फेंक देते थे, पर माता जी इतनी डिटर्मिन्ड रही, फिर भी जाने लगी। और ऐसे करते करते वो लोगों के हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने सोचा इसके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन है, इस माता के अंदर कितनी अपने गुरु के प्रति भक्ति है, इस माता के अंदर कितनी प्योरिटी है। फिर उन्होंने उसको तंग करना भी छोड़ दिया और वो पुस्तक वितरण करती रही इन 13 वर्षों में। चाहे कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आए उनके मार्ग में, वो रुकी नहीं, क्योंकि वो गुरु के आदेश को सर्वोपरि माने उन्होंने। तो महाराज ने जब ये सुना, उनकी आंखों से निरंतर अश्रु भी बह रहे थे। महाराज ने वो लक्ष्मी लेने से इनकार किया और माता जी से कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ ये लक्ष्मी तुम रखो, और इस साल की कार्तिक यात्रा की मैं परिक्रमा पे ले जा रहा हूँ वृंदावन के, मैं चाहता हूँ आप ज्वाइन करें। माता जी ने विनम्र होकर कहा, नहीं गुरुदेव, जिन लोगों ने मुझे ये लक्ष्मी दी है उनका हित तब होगा जब ये लक्ष्मी आप स्वीकार करोगे। मैं यदि इस लक्ष्मी से टिकट खर्चा करके आऊंगी, उससे उनका हित नहीं होगा, और मैं चाहती हूँ उनका हित हो। तो इसके बाद महाराज यही शब्द कहते हैं कि आज मेरा छाती गर्व से फूल गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेक कृष्णा एंड योर गुरु प्राउड ऑफ योर अकम्पलिशमेंट्स, ना कि हम प्राउड हो जाएं कि मैंने ये किया। गुरु को वो प्राउड फीलिंग होनी चाहिए अपने शिष्य के ऊपर। तो ये उदाहरण मुझे बहुत इंस्पायर किया था। इट इज कमिंग इन द बैक टू गॉडेड मैगजीन। तो माय हार्ट स्वेल्स विद प्राइड, ऐसा लिखते हैं इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज इन हिज ट्रैवलिंग डायरी, कुछ ऐसा उनका एक बुक है।
वो उससे ये एक्सर्प्ट है फ्रॉम बैक टू गॉड एट माइसेल्फ, सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो ब्रह्मा जी की भी यही मूड है, वो भगवान के लिए कार्य करना चाहते हैं विद दिस एटीट्यूड कि मैं करता नहीं हूँ, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। आगे हम देखेंगे प्राइड के ऊपर। ब्रह्मा जी इस श्लोक में यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैं जो कार्य करूंगा इट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रह्मा जी के हार्ट में यही फीलिंग है कि क्योंकि भगवान आप मुझे एम्पावर कर रहे हो। हर एक विभूति का अर्थ है हर एक को कुछ ना कुछ पावर दिया है भगवान ने, हर एक जीवात्मा को कोई ना कोई शक्ति भगवान ने प्रदान की है। किसी को कीर्तन करने की है, किसी को अच्छा नृत्य करने की शक्ति है, किसी को अच्छा प्रचार करने की शक्ति है, किसी को पुस्तक वितरण करने की शक्ति है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स है। सबको भगवान ने कुछ ना कोई विभूति दी हुई है, एम्पावर किया हुआ है। हमें सिर्फ उसका सही उपयोग करके अपने गुरु और कृष्ण के सेवा में उसे बहुत अच्छे तरह से उसको लगाना है। नॉट दैट वी मिसयूज दैट पावर, द विभूति गिवन। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद, और हर समय जब भी कार्य दिया गया है जो गुरु और कृष्ण द्वारा, निरंतर चिंतन अपने गुरु और कृष्ण का ही होना चाहिए। निरंतर उनसे आशीर्वाद की याचना, और उनसे यही होना है कि ये कार्य मैं सफलता से करूं आपके प्रसन्नता के लिए। एंड ब्रह्मा इज मेकिंग दिस वेरी क्लियर इन दिस प्रेयर। इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि मुझे मेरे अंदर कोई भी अहंकार या मेरे अंदर कोई प्राइड की भावना ना आ जाए भगवान, मैं आपसे ये ब्लेसिंग चाहता हूँ। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के व्यास पूजा थी, सैन फ्रांसिस्को की बात है ये। तब श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों ने, अब उन दिनों में फीस्ट होती है ना व्यास पूजा वाले दिन, तो फीस्ट में उन्होंने क्या बनाया था, एक सब्जी, रोटी, दाल, चावल और एक स्वीट बनाया था। और प्रभुपाद इससे बिल्कुल खुश नहीं हुए, वो थोड़े नाराज भी हो गए कि ऐसे कैसे, फीस्ट क्या होता है इसका अर्थ आप लोगों को पता नहीं। मेरे गुरु महाराज का आज व्यास पूजा है, ये कोई साधारण दिवस नहीं है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे फीस्ट मनाई जाती है, कैसे सब प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और भक्त कह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद किचन की चौखट पर आए तब प्रभुपाद ने ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ये प्रेयर बोली। उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया। नॉट दैट उनके अंदर ये था कि मैं सिखा रहा हूँ अपने शिष्यों को। प्रभुपाद ने कभी कोई क्रेडिट नहीं लिया। इस मूवमेंट की सक्सेस का भी श्रेय उन्होंने अपने गुरु और अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स, माय डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स प्रभुपाद कहते थे, हमेशा उन्हें दिया। हमेशा कहते थे मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, कभी भी इस संसार को त्याग छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के कारण ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। तो दिस वाज ऑलवेज हिज मूड। और यही प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि कभी हमें प्राइड से हमारा डाउनफॉल होगा। कल विशाखा माता जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रही थी वो लूडो का, और मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया कि कैसे हमारा पतन हो जाता है। ऊपर से भी बड़े हम सीनियर या बहुत अच्छी पोजीशन पे या भक्ति करते करते हम वी गेट सीरियस ऑल्सो, फिर भी हम गिर जाएंगे यदि हमारे अंदर वो प्राइड की भावना आ गई तो ये प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम देख सकते हैं। भक्ति गौर गोविंद स्वामी महाराज क्या कहते हैं, वो एक बार एक लेक्चर में कह रहे थे कि यदि आप बढ़िया कीर्तन कर रहे हो तो कभी मत समझना, इस इल्यूजन में मत रहना कि वो कीर्तन मैं कर रहा हूं। ये सोचना कि मेरे गुरु इस शरीर को इस्तेमाल करके वे कीर्तन कर रहे हैं। और यदि आप प्रचार कर रहे हो तो ये याद रखें कि मेरे गुरु मेरी वाणी और इस शरीर का इस्तेमाल करके वे ही बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने की शक्ति गुरु से आ रही है, ज्ञान भी गुरु से आ रहा है। गौर गोविंद स्वामी महाराज कह रहे हैं। तो हमेशा इन बातों को हमें कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। ऑलवेज बी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड कि सब कुछ गुरु के और कृष्ण के कृपा से ही हो रहा है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारे करुणा सार। तो ये जब हम भजन गाते हैं सो वी शुड फील इट फ्रॉम अवर हार्ट। कल ब्रजप्रिया माता जी ने बहुत ही सुंदर कहा, जब when we bow down and we प्रेम ध्वनि में एंड में कहते हैं all glories to श्री गुरु एंड गौरांगा, this touched the heart। क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये लिप सर्विस नहीं होके ये
निरंतर इस बात का चिंतन और स्मरण रहना चाहिए कि ऑल ग्लोरीज, हमारे शिक्षा गुरु इस ग्रेस चैतन्य सिंह प्रभु हमेशा कहते रहते हैं, यदि कोई तुम्हारे लिए कुछ कहे अच्छा, रिफ्लेक्ट इट टू द लोटस फीट ऑफ योर गुरु, वो आपके लिए है ही नहीं, उसे डाइवर्ट करके गुरु के चरणों में निछावर कर दो, डाल दो। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। प्रभुपाद तो यहाँ तक एक लेक्चर है, डेटी वर्शिप के लेक्चर पे प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं कि यदि हम आरती करने खड़े होते हैं जब अपने ऑल्टर के आगे, उस वक्त पहले माइंड से मेडिटेट ये करना है कि एक सोने का सिंहासन है, रत्न वेदी है। फिर आप मन से अपने गुरु को इनवाइट कीजिए, प्लीज कम एंड टेक योर सीट गुरुदेव। उसके बाद आपके गुरु ही डेटीज की आरती कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें पैराफेरनेलिया दे रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही होना है व्हेन वी आर डूइंग इवन आरती फॉर आवर डेटीज। तो ये भी मन में चिंतन रहना है कि सारा कुछ हमारे गुरु ही कर रहे हैं हमारे लिए, वी आर नॉट द डूअर्स। बट खेल यही खराब हो जाता है, कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कम से कम मैं अपने लिए यही कह सकती हूँ। सो वी गेट बिविल्डर्ड, ये कंडीशन सोल्स होने के कारण हम विस्मरण में, इल्यूजन में रहकर यही समझते हैं आई डिड इट, हाँ मैंने इतने वितरण किए किताब, मैंने इतना डोनेशन जमा किया, जन्माष्टमी है वगैरह वगैरह जो भी है सर्विसेज, सो इससे हमें बचना है। और इससे ये जो भावना हमारे अंदर प्राइड की यदि थोड़ी भी आ जाती है, हम मुंह से नहीं बोलेंगे, हृदय के अंदर वो सेल्फ टॉक होता रहता है, वाओ यू आर अमेजिंग, काश तो तुमने कुछ बेस्ट कर डाला, बहुत अच्छा किया। दैट सेल्फ टॉक हैपेंस विद इन योर हार्ट, और हार्ट में सुपर सोल है, वो भी सुन रहा है, गुरु भी सुन रहा है। तब गुरु हमारा ये अनर्थ निकालने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। एक बार ये भी मैंने इस्कॉन डिजायर ट्री में ब्लॉग्स आते हैं, उसमें पढ़ा था, इट अपील टू मी सो वेरी सो वेरी मच। इट्स अ ट्रांसेंडेंटल लीला, बेसिकली हम लोगों के सीखने के लिए है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हम जानते हैं कि वो बहुत प्रसिद्ध थे अपने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के लिए। प्रभुपाद ने उन्हें अपना टाइम देकर पर्सनली उन्हें ट्रेन किया था, तमाल कृष्ण स्वामी महाराज को। तो अधिकतर समय भक्त भी देखते थे कि प्रभुपाद का बहुत सारा समय वे उन्हें ज्यादा देते थे। तमाल कृष्ण ऑल्सो वॉज फीलिंग इन हिज हार्ट कि हाँ आई एम somebody special, प्रभुपाद मुझे इतना वक्त दे रहे हैं, और सब कुछ मैनेजमेंट सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मैं देखता हूँ अच्छे से। एंड ही इंडीड वाज डूइंग। इनफैक्ट महाराज के जाने के बाद भी कई सालों तक वृंदावन इस्कॉन में, कृष्ण बलराम मंदिर में जब भी इश्यूज होते थे, 5-5 सालों तक वे सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो वो सोचते थे आज यदि तमाल कृष्ण महाराज इस प्लैनेट पे होते, ये किस्सा तो आधे घंटे में सॉल्व हो गया होता। So that were his skills. He was empowered by शिला प्रभुपाद। पर एक दिन शिला प्रभुपाद ने क्या किया, यदि वो सूक्ष्म भाव भी उनके अंदर आया, तो प्रभुपाद ने क्या किया, तमाल कृष्ण स्वामी महाराज उनके कक्ष में आए और भागवतम का जो कवर पेज है वो पेंटिंग ले आए थे। हम जानते हैं पहले कैंटो का कवर पेज में तीनों विष्णु हैं, महाविष्णु लाइंग ऑन द कॉजल ओशन, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु भी दिख रहा है, द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, वो सारा पेंटिंग वे ले आए। तो प्रभुपाद ने उनके मुख में देखकर कहा, देखो देखो महाविष्णु के शरीर से, इन पोर्स से, छिद्रों से कितने अनंत अनंत मस्टर्ड सीड्स, एक बकेट फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, राई के दानों के जैसे अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। इतने सारे ब्रह्मांडों में से हमारा एक ब्रह्मांड है, और अर्थ एक प्लैनेट है, और इतने प्लैनेट्स में से हमारा एक प्लैनेट अर्थ है। पहले जरा तुम तमाल देखो कितने सारे स्पिरिचुअल वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, वो भी देखे उन्होंने फोटो में, ठीक है, पेंटिंग देख रहे हैं। अब हमारा एक प्लैनेट है, उस एक प्लैनेट अर्थ में कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तमाल कृष्ण ने कहा जी उसमें से एक कॉन्टिनेंट है अमेरिका, जी प्रभुपाद। उस अमेरिका में कितने सारे सिटीज हैं, उसमें से एक सिटी है लॉस एंजलिस, जी शीला प्रभुपाद। उस लॉस एंजलिस में कितने सारे स्ट्रीट्स हैं,
उसमें से एक स्ट्रीट है ला सिनेगा बॉलीवुड। उस स्ट्रीट में कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें से एक बिल्डिंग में हमारा ये छोटा सा हरे कृष्णा का टेम्पल है, कृष्ण का मंदिर है। यस प्रभुपाद। उस एक मंदिर में एक तमाल कृष्ण है जो समझ रहा है आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रभुपाद ने ऐसे कहा, तमाल कृष्ण महाराज गॉट द मैसेज, वे समझ गए कि आई एम नथिंग, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे अंदर ये जो थोड़ी सी सटल फीलिंग भी आ रही है कि मैं मैनेज कर पा रहा हूँ ये सब, तो प्रभुपाद ने a guru knows to crush your pride to powder, कहते हैं ना, ऐसे गुरु हमारा ये अनर्थ नष्ट करते हैं। इसीलिए हम बलराम जी को बलराम पूर्णिमा के दिन बहुत प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के अनर्थ गुरु ही नष्ट कर सकता है। इतनी प्राइड होने से तो डाउनफॉल ही हो जाता है। टाइटैनिक शिप के लिए कहा जाता था, गौर गोपाल प्रभु कहते हैं द अनसिंकेबल, द शिप दैट इवन गॉड कैन नॉट सिंक। हाँ, ऐसे एडवर्टाइजमेंट की गई थी उस शिप की, और वो पहले मेडन यात्रा पे ही वो शिप डूब गई, 1500 लोग मर गए। तो ऐसा क्या है जो भगवान नहीं कर सकते और हमारा प्राइड क्रश नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भगवान को प्रे करना है कि मेरे अंदर कोई प्राइड ना हो। कोई भी इवन मटेरियल कार्य कर दे, ऑफिस में अकम्प्लिशमेंट्स जो भी हमारी हैं, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ऑफिस में कार्य करता हो, छोटे से बड़े कार्य में कुकिंग कर रहे हो, कितनी बार हम गृहिणियां जब कुक करते हैं, वो आपका ये तो बहुत टेस्टी है, बिकॉज लॉर्ड हैज टेस्टेड, ये रेमिनेंट्स है प्रभु के, गुरु की कृपा है। तो ये हमें बहुत डीपली समझना है। और टू एंड विद दिस आई विल टेल कि एक बार जयद्वैत स्वामी महाराज अपनी क्लास में ये क्लियर समझा रहे थे कि हमें ये समझना है, भगवत गीता का 18th चैप्टर के 14th श्लोक में ये कहा गया है, 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी कार्य के सफल होने के लिए। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम। अधिष्ठानम यानी द प्लेस ऑफ एक्शन, यानी बॉडी, हमारा शरीर। कर्ता यानी आत्मा, आत्मा ना हो शरीर में तो क्या ये शरीर चलेगा? यू आर अ डेड पर्सन, देन यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरा करणम यानी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन, यानी हमारी इंद्रियां, इंद्रियां ना चले, किसी का हाथ पैरालाइज है, किसी का मुंह पैरालाइज है, वो बोल पाएगा, वो कुछ लिख पाएगा, एक्शंस कर पाएगा? नहीं। और चौथा है एंडेवियर, चेष्टा। और पांचवा कारण सबसे महत्वपूर्ण है दैव, प्रोविडेंस, हैंड ऑफ गॉड। ये 4 चीजें हो लाइन में, अलाइनमेंट में हो, और 5वां ना हो तो भी आप फेल हो सकते हो। हाँ, सो द सैंक्शन ऑफ कृष्णा इज बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंक्शन ऑफ गुरु और सैंक्शन ऑफ कृष्णा ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जब हम स्कूल में कक्षा में पढ़ते थे साइंस के पेपर के लिए, तो 20 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दिया जाता था। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम में अक्सर सबको 20 on 20 दे देते थे, बट वो भले 20 on 20 मिले, और यदि हमने जो 80 मार्क्स का रिटन पेपर है वो न दे पाए तो हम फेल हो गए, भले हमें 20 on 20 मिला है प्रैक्टिकल में। तो उसी प्रकार इन 5 फैक्टर्स में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सैंक्शन ऑफ कृष्णा। वो माने यानी मैक्सिमम पोर्शन वही है, मतलब वही मेन क्राइटेरिया है। तो ये हम समझ सकते हैं, जैसे एक क्रिकेट मैच हो, ये एग्जाम्पल चैतन्य चरण प्रभु देते हैं अपने एक क्लास में। क्रिकेट मैच के लिए अधिष्ठानम क्या है? द पिच सही नहीं हो तो बैट्समैन अच्छी बैटिंग करके अच्छे रन से स्कोर नहीं कर पाएगा। कर्ता यानी द सोल, आत्मा, उस बैट्समैन को जीवित होना है ना, ही हैज टू बी अलाइव, जीवित होगा तो ही वो कार्य कर पाएगा बैटिंग का। तीसरा करणम यानी उसके हाथ, बैटिंग के लिए उसको हाथ से बैटिंग करनी है, सेंसेस, उसका हाथ हेल्दी होना है। चेष्टा यानी इस दिन अगर उसे सेंचुरी मारनी है उस बैट्समैन को, तो उसने कितने दिनों तक प्रैक्टिस सेशन किया होगा, दैट इज एंडेवर। ऐसे नहीं वो एक दिन में आता है, बैटिंग करता है, 100 रन मारता है, नहीं, 6 महीने, 1 साल तक वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उस दिन के लिए। और लेकिन 5वां, यदि दैव साथ ना हो, यानी ये 4 चीजें साथ में हो, आपकी पिच सही है, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, आपका इंद्रियां अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ है,
और उस दिन यदि दैव साथ न दे, बारिश आ गई, समथिंग गोज रॉन्ग एंड आप सेंचुरी नहीं कर पाए, हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम महाभारत की एक कथा से देख सकते हैं कैसे दुर्योधन ने छल करके सहदेव जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है उससे पूछ लिया कि कौन सा दिन, कौन सा मुहूर्त अच्छा है जो मैं दुर्गा पूजा करूं, और ये दुर्गा पूजा करने से निश्चित ही हम कौरव विजयी होंगे। नकुल, पांडवास बीइंग वेरी वर्चुअस, सहदेव ने उन्हें, वो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट थे, तिथि वगैरह सारा कुछ बताया। परसों 2 दिन के बाद अमावस्या है, उस दिन आप ये पूजा करिए एंड उसके बाद हम युद्ध शुरू करेंगे तो आप ही विजयी होंगे। कृष्ण ने कहा हे भगवान, इसने तो पूरा खेल उलट पुलट कर दिया, बट ठीक है। पांडवों ने उनका पूरा डिपेंडेंस कृष्ण पे था। उनके लिए वो 4 फैक्टर्स तो मानो थे ही नहीं। सामने की आर्मी मजबूत है, सामने बड़े बड़े महारथी थे, उनके कंपैरिजन में इनकी आर्मी भी छोटी थी, नारायणी सेना कृष्ण की भी उधर थी, लेकिन फिर उनके साथ सिर्फ कृष्ण थे। कृष्ण ने क्या किया, अगले ही दिन पांडवों को कहा चलो नदी के किनारे आज तर्पण करो। तर्पण अक्सर अमावस्या वाले दिन होता है और अमावस्या 2 दिन बाद थी। कृष्ण अगले ही दिन उन्हें ले गए, रिवर के पास तर्पण करा रहे हैं। तो सारे देवता अचंभित हो गए, कंफ्यूज हो गए, कृष्ण क्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं आज अमावस्या नहीं है, कल है, पांडव आज क्यों तर्पण कर रहे हैं। तो सूर्य और चंद्र नीचे आ गए, बोले कृष्णा को पूछने लगे प्रभु आज नहीं है अमावस्या, कल है। तब भगवान ने ये सब युक्ति लगाई थी। भगवान ने कहा अमावस्या है क्या, व्हेन सन एंड मून आर इन द लाइन, आप दोनों आ गए हो, अमावस्या आज हो गई, तिथि बदल गई, आज ही हो गया अमावस्या। सो दिस वाज ट्रू, और पांडवों का तर्पण भी हो गया, और दुर्योधन ने दूसरे दिन पूजा करके कोई लाभ प्राप्त किया ही नहीं, क्योंकि अमावस्या की तिथि ही भगवान ने बदल दी। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमने देखे भगवान ने महाभारत के युद्ध में किए पांडवों के लिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किलिंग ऑफ जयद्रथ। मेनी फैक्टर्स, मेनी स्टोरीज आर देयर व्हिच वी कांट टेक अप, बट अंततो गत्वा कहने का अर्थ यही है कि दैव यानी हैंड ऑफ गॉड, भगवान की सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की सैंक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें शायद बराबर ना हो अलाइनमेंट में, फिर भी भगवान के प्रति यदि समर्पण है, गुरु के प्रति यदि समर्पण है, तो फिर वो कार्य फिर भी अकम्प्लिश होगा, सक्सेसफुल होगा। और वो बात ब्रह्मा जी जानते हैं, क्योंकि ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैं भगवान को प्रे करता हूँ ये कार्य सृष्टि विसर्ग का मेरे द्वारा जो होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बराबर अच्छे से हो जाएगा, लेकिन मुझे इस कार्य को संपन्न करते करते प्रभु मेरे अंदर कभी गर्व ना आएगा। मेरी बेटी एक कॉन्वेंट में पढ़ती थी, वो अक्सर मैं उसको सुनती थी ये प्रेयर बोलते हुए, नॉट अनटू यू ओ लॉर्ड, नॉट अनटू मी ओ लॉर्ड, नॉट अनटू मी, टू यू बी द ऑल ग्लोरी, ऐसा कुछ वो गाती थी। मतलब ना हम तू हो प्रभु, सारी ग्लोरीज आपके लिए, गुरु सारी ग्लोरीज आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये सब जब फैक्टर्स देखते हैं हम भगवत गीता के इस श्लोका से भी जयद्रथ स्वामी महाराज सिखा रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट द कर्ता, आई एम नॉट द डूअर, एंड ब्रह्मा जी को इस बात का पूरी तरह से ही इज कॉन्शियस। और यहाँ परपट में प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि भगवान चाहे तो किसी को ऐसे एम्पावर कर सकते हैं, उसको इतना फेम दे सकते हैं। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है हनुमान जी का। रामायण में हमें ऐसे लग रहा है कि हनुमान जी का मेजर रोल है, यदि वे ब्रिज ना बनाते, ये ओशन क्रॉस करके ना जाते, सीता को ना ढूंढते, तो राम जी हेल्पलेस थे। इट अपरेंटली अपीयर्स लाइक दैट, बट ये सारा हनुमान जी को इस बात का स्मरण है कि मेरे प्रभु राम ही मुझे एम्पावर कर रहे हैं, आई एम जस्ट एक निमित्त, मैं एक उनका तुच्छ दास हूँ। तो प्रभुपाद परपट में ये भी लिख रहे हैं कि यदि हम किसी भी फायर रसस में से भगवान के साथ डिवोटीज एंगेज्ड है, लेकिन मेनली वो सर्विटर ही रहेंगे भगवान के, ये प्राइमरी अंडरलाइंग थिंग है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि साख्य का भाव है उनका कृष्ण के साथ, बट ही इज ऑलवेज, साख्य में भी वो सर्विटर की मूड ही रहनी है। तो ये इस श्लोक का परपट है, और यही श्लोक को संक्षेप में जैसे मैं I could put in front of you. Thank you so much, and I hope I finished on time. Please forgive my limitations, कुछ भी गलती हुई हो
और कुछ भी पॉइंट्स छूट गए हों तो आप सब वरिष्ठ भक्त सीनियर डिवोटीज कैन एनलाइटन मी. Thank you so much. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Very wonderful class, Mataji. बहुत अच्छे से जो ब्रह्मा जी का मूड है वो आपने प्रेजेंट किया. जैसे हमने कल भी यही देखा था, विशाखा माता जी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था. तो सेम जो मूड है एक डिसाइपल का कैसे होना चाहिए कि आई एम नथिंग, भगवान आप ही हो. और माता जी आपने इतना सारा जो एनालॉजीज, इतना सारा जो स्टोरी, जैसे तो प्रभुपाद जी का जो था कि कैसे वो जब फीस्ट के लिए जब किचन में गए तो ही स्टार्टेड प्रेइंग टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर. या फिर जैसे भक्ति सिन्हा सॉरी तमाल कृष्ण महाराज जी का कैसे उनको मतलब जो था ये जो प्राइड था वो निकाल दिया. तो इट इज ड्यूटी ऑफ डिसाइपल ये हमेशा याद रखें कि आई एम नथिंग. जो भी हो रहा है, हम लोग बड़े बड़े कार्य कर भी रहे हैं, जैसे हनुमान जी थे, ही डिड सच अ हरक्यूलिन टास्क बोल सकते हैं, मतलब इम्पॉसिबल टास्क, बट ही नेवर हैड दैट प्राइड. इवन स्लाइट लेश मात्र भी नहीं था. ही ऑलवेज थॉट कि भगवान रामचंद्र मुझसे करवा रहा है. तो वैसा मूड जो है हम लोग को होना चाहिए हमेशा, which even Brahma ji is having. और हम लोग भी कोशिश करें कि we stay away from pride and be in this mood. So very nicely presented. Thank you, Mata. Hare Krishna. Hare Krishna, Mata. Hare Krishna, Mataji. Yes, Mataji. Did you? Yeah, please go ahead. I think Guru Bhakti का आवाज है. Hare Krishna. तो I think रजप्रिया माताजी भी उसी टाइम बोल रहे थे. I'm so sorry. माताजी, thank you so much for such a wonderful class. मेरा बहुत सारा मिस हो गया by mistake. I just completely forgot to join in. But जो end का मैंने सुना, it was just so touching. कि कैसे हमें कभी भी प्राइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि कृष्णा और गुरु के सैंक्शन के बिना कुछ हो नहीं सकता. तो माताजी, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे हमारे प्यूरिफिकेशन के केस में तो 5 थिंग्स जो नेसेसरी है, उसमें से कौन सी चीज़ मिसिंग है कि हम प्यूरिफाई नहीं हो पा रहे अभी तक. जैसे हमें फील होता है कि हाँ प्लेस है एंड वी वांट टू बी प्यूरिफाइड, बट मे बी हमारी डिज़ायर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इतनी प्योर नहीं है. हमारी सोल है एंड आई फॉरगॉट और क्या था, एंड मेन भगवान का सैंक्शन था. तो माताजी मुझे ये डाउट आ रहा था कि क्या मिसिंग है. आई थिंक भगवान तो हमेशा सैंक्शन करेंगे, तो इज इट दैट हमारी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वी आर नॉट रियली रेडी टू बी प्यूरिफाइड, इसलिए हम प्यूरिफाई नहीं हो पा रहे अभी तक. सो प्लीज गाइड माताजी. थैंक यू. Hare Krishna, Mataji. If I have understood your question, purify नहीं हो पा रहे, can you a little bit elaborate on that? Means what? Purify नहीं हो पा रहे यानी क्या? You mean to say आपके अंदर अभी भी अनर्थास है? You mean to say that, right? Yes, Mataji. अनर्थास सबके अंदर है कि हम भी उससे फ्री नहीं है, but yes, लाइफ टाइम से we are conditioned. It's not that ये जन्म में हम it's been lifetimes and lifetimes. Imagine ब्रह्मा जी का एक दिन, which is 1000 into 4 chatur yugas combined together. That day ends. ब्रह्मा जी sleeps. Again हम सारी जीवात्माएं भगवान के शरीर में डॉर्मेंट स्टेट में गई, फिर वापस मॉर्निंग हुई ब्रह्मा जी की. आप जस्ट कैलकुलेट तो करिए कितने अनंत कोटि युगों से हम ऐसे कंडीशन बद्ध अवस्था में हैं. तो आपको क्या लगता है, एक ही बर्थ में अभी हमें गुरु की कृपा मिली है, वी ऑल हैव टेकन द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द गुरु, तो वो हमारी कंडीशनिंग्स क्या इतनी जल्दी से it takes time, Mataji. This is a process. The process, we have to give time, we have to have complete faith that this process works because our acharyas have given it.
Our Srila Prabhupada also said, if we take this process seriously, अगर हम इस process को seriously लेते हैं, इस एक birth को, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, give one life to Krishna. तो हम इस life में यदि without distraction, focused इतने रहें कृष्णा consciousness में, अब जो ये दिए गए हैं 4 नियमों का पालन करें, chanting अपनी offenses के बगैर, और जो भी हमारे गुरु ने हमें दी है particular सेवा, वो सब करते रहे, डिवोटी सेवा विदाउट ऑफेंडिंग एनी डिवोटी, ये सब यदि हम करते रहे, प्रभुपाद हैज गारंटीड ही विल टेक अस बैक टू गॉडहेड. सो वी डोंट हैव टू डाउट. Yes, the anarthas are there for all of us because we are all conditioned, but gradually we will get purified. It just doesn't happen overnight, Mataji. It just doesn't happen overnight. The Krishna prema उत्पन्न होने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने सुना था, आई थिंक इन चैतन्य चरण प्रभु's क्लास, कि एक लड़की जब होती है तो वो पहले क्या करती है, यंग लड़कियां, उनको अपना साज सिंगार अच्छा लगता है, बाहर घूमने फिरने जाना, खाना पीना, टिप टॉप रहना, लड़कियां ऐसे करती है. पर जब वो लड़की मैरी करती है और जब उस माँ बन जाती है, तो वो अपना साज संवरना, खाना पीना, घूमना फिरना सब छोड़ के हर फोकस इज द चाइल्ड. वो अपने बच्चे के लिए इतना सैक्रिफाइस करती है, एंड हैप्पीली शी डज इट. Her love towards the child is so much that she just forgets about her own self. वो खुद को भी भूल जाती है. तो वो एक प्रोसेस है ना माता जी. वो लड़की पहले तो पहले अपने इंद्र कीर्ति में मगन थी, पर प्रोसेस क्या था? Eventually she got married. Eventually she united with her husband. Then she conceived the child, and when the child came from her womb, जब बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो उसकी ऐसी सेवा करने लगी, and she got so absorbed in the child कि वो अपनी इंद्र तृप्ति भूल गई. तो हमारे लिए भी ये प्रोसेस चॉकआउट किया गया है. करंटली हम अपने इंद्र तृप्ति को, अपने शरीर को, आई एम दिस बॉडी, उसी लेवल पे हैं, बॉडीली एब्जॉर्ब्ड है. बट व्हेन वी फॉलो दिस प्रोसेस, यू हैव टू गिव इट टाइम ऑब्वियसली. तो ये लड़की ने का एग्जांपल ऐसे दिया था चैतन्य चरण प्रभु जी ने. तो इट्स अ प्रोसेस, द प्रोसेस डेफिनेटली वर्क्स. सो बी पेशेंट. आई एम श्योर गोपी मनोहर प्रभु एंड अदर सीनियर डिवोटीज हैव अ बेटर आंसर. They could still guide you, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. This is so helpful. बस कभी कभी ऐसे फील होता है कि कब होगा, बिकॉज हमारे अनर्थास they will stop us from chanting properly. हम ऑफेंसेस भी करते हैं डिवोटीज के प्रति. कितने सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं. कभी गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो पाते, कभी उसके सर्विस में कुछ गलती हो जाती है. तो ऐसे फील होता है कि बस भगवान अभी आपकी डिजायर हो तो 1 मिनट में ये अनर्थास फिनिश कर दो, फिर मैं अच्छे से सर्व करूंगी. तो इट जस्ट फील्स लाइक we need to continuously read Prabhupada's books, hear his lectures, and associate with very advanced devotees, you know, who are rigidly following everything cautiously. मैं यही कहूंगी, that helps, that really helps. कहते हैं ना, वो शराबी के संग में रहो तो हम भी शराबी बनेंगे. ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, वो ग्रैब कर लेना चाहिए. उसी से प्रैक्टिकली हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज माय हम्बल ओपिनियन. थैंक यू. हरे कृष्ण. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Dandavat pranam. हरे कृष्णा. मैं खाली 1 मिनट लेता हूँ. बहुत अच्छा क्वेश्चन था गुरु भक्ति का, एंड वेरी नाइसली माता जी आपने इसका जवाब दिया. तो जैसे जो 5 फैक्टर्स हैं, तो उसमें जो है दैव भी है, अधिष्ठान भी है, सब कुछ है. लेकिन जो करता है, हम लोग जो है, जैसे सही बताया कि हम लोग जो है उतना प्रयास, उतना एंडीवर हम लोग नहीं डाल रहे हैं, उतना डिजायर हमारा जो है उतना प्रबल नहीं है हम लोग. और इसीलिए हम लोग जो है भगवान का, और भगवान से ज्यादा हम लोग गुरु की कृपा का हम लोग याचना करते हैं कि शायद भगवान की कृपा होने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन गुरु की कृपा इमीडिएटली हो जाती. बिकॉज एकदम है ना, परम वैष्णव है, तो इमीडिएटली कृपा करते हैं, हम लोगों को आगे पुश करते हैं. तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे फिर तुमने कहा गुरु भक्ति की ऑफेंसेस हैं, तो ये सब फैक्टर्स जो है हम लोगों को जो है ना एक एंकर है हमारा, जो हमको आगे भक्ति में पढ़ने में देती. तो इन सब से बचना चाहिए हम लोगों को. और डिजायर्स जो है हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखें, और बार बार हम लोग जो है
जैसे माता जी ने भी कहा, भक्तों का जो एलिवेटेड डिवोटीज है उनका संग करें, उनसे शिक्षा ले उनसे कि व्हाट शुड आई डू, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूँ। वो बार बार हमको उनसे मतलब ये नॉलेज लेते रहना चाहिए। वी शुड कीप हियरिंग एंड कीप एसोसिएटिंग एंड कीप सर्विंग ऑल द वैष्णव, नॉट ओनली अवर स्पिरिचुअल मास्टर बट ऑल द वैष्णव। तो ऑटोमेटिकली फिर जो है वी कैन सी द प्रोग्रेस। और ये जितना हम लोग ये प्रोसेस जो है जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना हम लोग को अपना भक्ति में हम लोग खुद को दिखाई देगा कि ये टाइम मतलब जो है कुछ मेरा जो पहले जो था पिछले एकादशी से या 15 दिन पहले या एक महीना पहला, तो we'll see the difference ourselves. So all these factors are very very important and we need to focus a lot on that. और ये जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको जो है फिर हम लोग भक्ति में इन सब के कृपा से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू माता, बहुत अच्छा आपने सॉन्ग करके। आई जस्ट वांटेड टू एट दिस पॉइंट। हरे कृष्णा।